ready. Rajesh Signapurkar as well as Mr. Harmalkar. Siddesh Harmalkar. I've got with me Dheeraj Paliyekar. First delivery nicely played with soft hands and gets this single. Gets off the mark with one. Left-handed batter on strike. Scored 62 in that previous game. Suchit Nanche was awarded the man of the match as well. Got a wicket as well while he was bowling. A big score that they put on. 178 run opening partnership between them. Man at deep mid wicket and man at long on the fence, whereas the rest inside the 30-yard ring. Short delivery nicely played again with soft hands, this time by his partner. Just one. This will be a good contrast as Amrut Lekar will be up against Rajat Kudalkar at some point. Also Poppy. Disappointing that last game where they could have got a win quite comfortably. Target of 45 which was not achieved. Nicely cut away. Oh, a bit of fumble from that fielder. And will pick up one. Talking about that 45, the man coming in, Aryan. Aryan had to play for just singles or doubles. He tried to smack every delivery out of the park. Young man will learn, but at that situation would have got him some match exposure and also would have given some confidence in the heads of his partner at the other end. He also tried some foolish thing and got out. This time up in the air, but will fall safe. Another single taken. And trying to copy somebody else in the nets or trying to replicate somebody else can also diminish your game a bit. You just need to be focused and calm when that situation happens, when there are not much to defend and not much to get. Again squatted away. This time running towards the fence. Santosh Palni after it and will cut it off for just two. The score moves on to 6. This being the first over in progress. First overs mandatory power play. From the 3rd till the 6th you can opt for the PPL over. When it comes to the Dhruv over, all the fielders will be inside the 30-yard ring, and at the 35th minute you need to start your 8th over. Otherwise a penalty has to be given. Oh, would have been going on to the stumps, but wasn't to be. Dot delivery to end the over after completion of the first. It's 6. 6 without loss after the first over. Talking about luck not going their way, as just needing 45, they had their set batter in. He also got out, and also the 2 overs which were penalized, extra fielder was in, they couldn't cash in that as well. So they need to blame themselves for not going across the line. A tough pill to swallow as far as the Satyadevi Naibag are concerned. Here's Akshay to Suchit Nanche. 6 without loss after the first over. Nick and gone. A casual bit of shot. And the nick flies to the keeper. Amrut Lekar takes it quite comfortably. And it's 6 for 1.
Wicket at the first delivery for Akshay. In case if you have joined just now, then this is the Pernem Premier League Season 10 2025, powered by Gomanchal Dairy. 12 teams, 4 teams on display today. Tonight, 2 teams will be heading into the quarterfinals. Where did it hit? Back at the bat. Oh, missed out. Will take the single. Apologies, just being corrected that there are no quarterfinals. There is a knockout game. Oh, Amit is down. Self-accident. Wanting to go back and just slipped. Top 3 teams will go into the semi-finals, and one game will be there where the 5th and the 6th. Oh, that's up in the air. Field underneath. Taken. Couldn't have found Amir better on the fence. Rajat Kudalkar. Big New man in Sitar Shadia, left-handed batsman. 7 for the loss of 2 wickets. Got rid of both the openers very early. Did Akshay. That's up in the air again. Fielder taken. Gone. Puppy taking the catch. And the 3rd wicket down of Ganapati Warriors Ozrim. 7 for 3. That's up in the air and taken. Gone. And that's a hat trick for Akshay. Akshay Thavre with the first hat trick in this PPL Season 10. For 4. A total harakiri at the moment by the Ganapati Warriors Ozrim batsman.
Chandrakant Kamri, the new man in. Hat trick achieved. And the last ball coming up from Akshay Tarle. Let's it go. And that's a dot delivery. Dot delivery to end the over. Superb over coming to an end. 1 run and 4 wickets. 7 for the loss of 4 after completion of 2 overs. Ganapati Warriors Ozrim. Mandar Zatia will continue in this PPL over. Drew over where all the fielders are inside the 30-yard ring. 7 for the loss of 4 wickets. Dhananjay Vast on strike. Nick! Oh, just fine. Just placed fine. Would have been goner, but not to be. Just away from the reach of the wicketkeeper. Living dangerously, the batsman of Ozrim. 7 for 4 right now. This being the Dhruv over. This time trying to play it across the line. Missed out. Dot delivery. What a game we had earlier. 45 runs to chase down, and team just made a complete meal out of it. Well, you can say losing by 1 run in the end. Shuffling across, this time played up and over. And finally a boundary comes. First boundary in this innings coming from the bat of Dhananjay Vast. Shot and wide and cut away over the point's head. Score moves on to 12. Pretty slow going this as far as the wickets lost earlier, and now getting a boundary in this over, this being the PPL over. Wanted it straight down the ground into the hands of the fielder. Dot delivery to end the over after completion of 3. It's 12 for 4. 12 for 4 after completion of 3 overs. Ganapati Warriors, Ozrim.
Akshay will continue. Picked up 4 wickets in that previous over up against Dhananjay Vast. Bowling from the commentary box end. Knocked him over, gone. Stumps uprooted, and he completes his 5-wicket haul. Just moving across was Dhananjay Vast, and his furniture got castled completely. 12 for 5. Ganpati Warriors Ozrim slipping into more trouble now. Akshay Thavre has been superb in his spell, short little spell, but has picked up 5 wickets, 4 in the previous over, and now completely bamboozling Dhananjay Vast. Good delivery, gets bat in at the right time, gets a single, and gets off the mark straight away, does Sachin. Score moves on to 13. Lose early wickets. Rajat Kudalkar gone. Suchit Nanche as well. Then Sitar Shetye, Pallav Shetye, and Dhananjay now. Again gets back to ball and will pick up a single. Just the 4th over in progress. Already lost half their side. A complete bit of harakiri done by all the batsmen. It's whacked around and that's gone for 6 into the stands. It came out of nowhere from Sachin. Saw the opportunity as nobody was there on that boundary rope and just swung across and gets enough result which he wanted to. Score moves on to 20. Short delivery. Playing to plate up and under. Missed out. Dot delivery. Last delivery coming up in his spell. So far has been excellent. Nicely played. And will get a single. Looking for the second? No, denied. Single taken after completion of 4 overs at the halfway stage. It's 21 for 5. Superb spell of bowling coming to an end of Akshay Thavre. 2 overs, no maidens, 10 runs and 5 wickets. Superb spell of bowling. Ganpati Warriors Ozrim at 21 for 5. Change in voice, it will be Ashok Naik sir with you in the comm box for the next 4. थैंक यू श्याम कलंगुटकर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 5 विकेट पर। क्या शानदार गेंदबाजी रही, बहुत ही शानदार। 2 ओवर कोई मेडन नहीं और 5 विकेट टोटल 10 रन देकर अमृत वेरलेकर आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है जो कि और टोटल स्कोर हो चुका है 21, लॉस ऑफ 5 विकेट, 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद आके शरीर पे टकराई, लेग कटर अपने फॉलो थ्रू में बड़ी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग बार पर अमृत वेरलेकर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए 5वां ओवर 8 ओवर का मुकाबला है। सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नईबाग और उन्हीं के साथ गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी कर रही है। इस बार फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, हल्का सा अपील, कोई असर नहीं उस अपील का। लगातार 2 मैच जीत चुकी है गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम और देखना होगा सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नईबाग क्रिकेट टीम जो अपना अंतिम मुकाबला खेल रही है। आगे निकले इस बार बड़े शॉट के लिए, गेंद खड़ी हो गई कवर पॉइंट पर और एक आसान सा मौका निकला, कैच को पकड़ा और एक कामयाबी मिलती हुई सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नईबाग क्रिकेट टीम को। डीजे मैदान पर जाते हुए प्रीतम बारी ओवरसीज खिलाड़ी है और देखना होगा थोड़ी सी नाजुक अवस्था में जरूर है गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम, क्योंकि 6 विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं और उसका बिल्कुल कारण है कि जो शानदार गेंदबाजी रही, 5 विकेट चटका अक्षय तावरे ने अमृत वेरलेकर बॉलिंग बार पर। अच्छी गेंद इस बार अंदर आती हुई, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। थर्ड मैन पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर मंदार गेंद फील्ड करते, जो गेंद 4 रन के लिए लगभग निकल रही थी वहां पर सिर्फ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ा 22, लॉस ऑफ 6 विकेट, 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर। धीरज पालियेकर हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। बुलरलेन की गेंद फिर से आके पैरों पे टकराई, अपने फॉलो थ्रू में आते एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, जिस ओवर में अमृत वेरलेकर ने सिर्फ 1 रन दिया, 1 विकेट चटकाया। खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 22, लॉस ऑफ 6 विकेट, 22 रन 6 विकेट पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर आखिरी ओवर का, 3 ओवर का खेल अभी भी मैच का बाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रसाद नागवेकर आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। प्रीतम बारी और प्रीतम के साथ चंद्रकांत कांबळे। इस बार पुल किया, गेंद को आने का इंतजार किया, थोड़ी सी लेग कटर गेंद, काउ कॉर्नर पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल दोनों के बीच में। इस मैच में अच्छी गेंदबाजी रही, अच्छी फील्डिंग कर रही है। पिछला मैच क्या कहां से कहां मुकाबला हाथों से छूटा, यादगार मुकाबला रहा। आगे निकलकर फ्रंट फुट पर गेंद को हल्के से ढीले हाथों से खेला और जब तक कवर पॉइंट पर गेंद फील्ड होती एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे। राजेंद्र दाभोलकर क्या शानदार गेंदबाजी की, आखिरी ओवर में ओमकार देसाई ने बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की और मैच जो कि एक यादगार मुकाबला समाप्त हुआ। ऑप्टम से बाहर कट होकर और बाहर की तरफ निकली, टिप्पा खाने के बाद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 25, लॉस ऑफ 6 विकेट, 25 रन 6 विकेट पर।
इस बार कारपेट के साथ खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, देखना पड़ेगा, एक सिंगल बनेगा, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और उसी का फायदा उठाते हुए जो सिंगल था वहीं पर 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 27, लॉस ऑफ 6 विकेट, 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर। प्रसाद नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार बड़ा शॉट, बड़ी देर के बाद हवाई फायर, डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। डीजे रन बल के साथ टोटल आगे बढ़ा 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर। खुद के व्यक्तिगत 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 1 छक्का लगाकर और 2 पर बल्लेबाजी करते हुए चंद्रकांत कांबड़ी। सामने इस बार लॉन्ग ऑफ पर अच्छा शॉट, फील्डर गेंद ने इस बार काटा बदला, फील्डर बिल्कुल पीछे था लेकिन गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला और वहीं पर गेंद धोखा खा गई फील्डर को। मिले 4 रन कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद आती हुई, 4 बहुमूल्य रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, जो बिल्कुल कम टोटल दिख रहा था, लेकिन इस ओवर में 2 बड़े शॉट, 1 छक्का लगा, 1 चौका लगा और अब मात्र ठीक ठाक थोड़ी सी दिखाई देती हुई स्कोर पहुंचा 37 पर। ओवर पेज उड़ाया सामने, बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमारेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। एक फायदेमंद ओवर जो कि होता हुआ गणपति वॉरियर्स वज्रम क्रिकेट टीम के लिए। खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवर का और इन 6 ओवर के साथ टोटल पहुंचा 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रन पिछले ओवर में बने 21 रन, कहीं ना कहीं महंगा ओवर साबित रहा पिछला ओवर। 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा और फिलहाल अमृत वेरलेकर खुद का दूसरा टीम का 7वां ओवर लेकर इस बार सफल होकर खेला। गेंद को रन के लिए निकले थे, लेकिन जैसे देखा गेंद पर विकेट कीपर बड़ी तेजी के साथ आते हुए गेंद को फील्ड करते हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चंद्रकांत कांबड़ी और उन्हीं के साथ बल्लेबाजी करते हुए प्रीतम बारी। 43 रन टोटल 6 विकेट पर, 43 गड़ी बात। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से कट होकर बाहर की तरफ निकली, लेग कटर, खड़े खड़े बल्ला घुमाया था, कोई फुटवर्क नहीं था और गेंद फिर से एक बार निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ 7वां ओवर जारी। अमृत वेरलेकर का खुद का दूसरा। इस बार फिर से पीछा किया था ऑफ स्टंप पर, यह गेंद कट होकर फिर से लेग ब्रेक और गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। तो लगातार 2 डॉट गेंदे बल्लेबाजी में, 3 जो कि डॉट गेंदे। 7वां ओवर टोटल, अभी भी 9 गेंदों का खेल बाकी है। थोड़ी सी चर्चा हुई, आकर बात बता दी बिल्कुल प्रीतम बाहरी ने कि शायद मुझे मौका दे दे। इस बार कारपेट के साथ खेला, सिंगल बनेगा मिड विकेट पर, फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते और अब मात्र स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ चुके प्रीतम बारी। शानदार बल्लेबाजी कर रहे, अब तक 2 छक्के लगा चुके, 1 चौका लगा चुके हैं। 20 पर खुद के व्यक्तिगत 6 गेंदों का सामना कर चुके हैं। टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है 7वें ओवर का। इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। स्ट्राइक पर प्रीतम बारी।
ओ इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था, बहुत अच्छी लाइन पर अमृत लेकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और बहुत अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद ब्लॉक होल में, सम्मान दिया, सिंगल बनाया, स्ट्राइक फिर से मिलने के लिए बिल्कुल ये अच्छी सोच थी प्रीतम बारी की। और इस सिंगल के साथ खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, यानी 7 ओवर समाप्त हुए और 7वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर इस ओवर में, पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन बने, 45 रन 6 विकेट पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। लास्ट ओवर टू गो। साई दत्त आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। छोटी गेंद इस बार खेला, अच्छा शॉट, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, पहले बाउंस पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। लगा थोड़ी सी गेंद जो कि अंदर गिरती हुई लॉन्ग अप बाउंड्री पर, लेकिन एक अच्छा शॉट था। इस बार ऑन साइड पर घूमकर मारा, देखना होगा मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, दूसरे के लिए पलटे गणपति वॉरियर्स वज्री क्रिकेट टीम के 50 रन टोटल पूरे होते हुए 51 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 6 विकेट। 7वें विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी बनती हुई चंद्रकांत कांबड़ी और प्रीतम बारी के बीच में, लेकिन खास योगदान देना पड़ेगा जो कि उनमें बात तो प्रीतम बारी की बल्लेबाजी की, 2 चौके अब तक 2 छक्के लगते हुए उनके बल्लेबाजी में। ऑफसाइड पर बहुत ही शानदार शॉट, गैप में गेंद, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। भी 11 गेंदों का अब तक सामना कर चुके। ओवर पिच गेंद उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। के सिर्फ 22 रन 5वें ओवर में बने, 21 रन, फिर से कमबैक किया अमृत वेरलेकर ने, सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इस अंतिम ओवर में साई दत्त 2 चौके 1 छक्का अब तक। लोअर फुल टॉस, बल्ले से निचले से चलेगी, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, काउ कॉर्नर पर फील्डर, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, रनआउट के लिए अपील और अंपायर का इशारा आ चुका है तीसरे अंपायर की ओर। तो बल्लेबाज सेफ है, मिलेंगे 2 रन।
स्कोर के खाते में और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 63 63 पर। लास्ट बॉल टू गो, लास्ट बॉल टू गो। टोटल स्कोर हो चुका है अब तक 63। इस बार फुल टॉस गेंद, फील्डर है मौजूद लेकिन फील्डर को बीट करती हुई गेंद, गेंद चली गई 4 रन के लिए और 4 रन जुड़ गए। वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मिले 4 रन स्कोर के खाते में और इन 4 रन के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 67 और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 68 रन। लेकिन शानदार बल्लेबाजी प्रीतम बारी की, 43 रन बनाए गेंदों का उन्होंने और इनमें 3 छक्के लगे, 4 चौके लगे अपने बल्लेबाजी में। 14 गेंदों में 43 रन, शानदार बल्लेबाजी प्रीतम बारी की और इसी के बदौलत एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया है 67 और 68, 68 रन टोटल मैच को जीतने के लिए।
अच्छा टाइमिंग नहीं, रन के लिए निकले सामने, जब तक सागर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते फील्ड करते, स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचा 10 पर। दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, मालूम है पावर प्ले चल रहा है, एक दूसरा बड़ा शॉट क्यों ना हो जाए। 68 रनों के जवाब में और राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट सागर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, फिर से एक बार अच्छा शॉट, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ओहो, मिस फील्डिंग और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 14 पर पहुंचा टोटल स्कोर। मिडॉन पर फील्डर, सीधे हाथों में गेंद सर्कल पर और सफलता मिलती हुई पहला विकेट चला गया। इसी के साथ सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम का 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक चौका लगाया अक्षय तावरे ने 8 पर खुद के व्यक्तिगत। टीम का स्कोर हो चुका है टोटल 14 रन 1 विकेट पर और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर अमृत वेरलेकर। आज गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। ओ आते आते पहली गेंद पर स्विच हिट की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के साथ स्लिप की तरफ। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले समाप्त हुआ 2 ओवर का और पावर प्ले के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 68 रनों का टोटल टारगेट है 8 ओवर में। आने वाले 36 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 54 रन, 36 चेंडू 54 दावा जो अभी भी मैच को जीतने के लिए। चलिए कैप्टन प्लीज दाबलकर ब्रदर्स मोरजिम क्रिकेट टीम और HYS वॉरियर्स आशापुर क्रिकेट टीम। बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं रजत गुडालकर। अमृत वेरलेकर खाता खोलना बाकी। एक चौका 5 पर सईदत्त कोठावड़े जो स्ट्राइक पर और उनके लिए राउंड विकेट रजत अपने बॉलिंग मार्ग पर। शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 14 पर। तीसरा ओवर जारी है 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, इस बार बल्ले का मुंह खोला, इस बार हल्के से खेला अंपायर के बगल में और जब तक कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 15 रनों पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं अमृत वेरलेकर जो सामना करेंगे रजत की गेंदबाजी का। टोटल 15 रन 1 विकेट पर।
आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर पर मिड ऑफ से फील्डर जाते, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, आराम के साथ एक सिंगल, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे अमृत वर्लेकर। मालूम है निर्णायक मुकाबला है, इस मैच में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में 2 हार का सामना करना पड़ चुका है, लीग का फॉर्मेट है, आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं, जाते जाते एक जीत क्यों न हो जाए अपने टीम के लिए। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, हल्का सा अपील, और देखना होगा कि अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर आ चुका है, देखा जाएगा। रनआउट के लिए अपील हो चुका है, विकेट कीपर ने निशाना लगाया है, और तो तीसरे अंपायर का निर्णय नॉट आउट, बल्लेबाज सेफ है, और स्कोर टोटल 16 पर पहुंचता हुआ। आज पहला दिन, थोड़ा सा उद्घाटन समारंभ, इसीलिए थोड़ा सा मुकाबला, जो पहला मैच 1:30 को शुरू हो चुका था, लेकिन कल दोस्तों बिग ग्रुप है, और पहला मैच ठीक 1 बजे 12:30 का आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। मैच होगा साई क्रिकेटर्स केरिम और प्रीतिका वरियस धारीवाल के बीच में। मिड ऑफ पर फील्डर, कैच का मौका निकला था, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए, और जब तक गेंद थोड़ी से हाथों से दूर निकली, एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं एक मौका निकला था बिल्कुल, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 17 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। खेल जारी है तीसरे ओवर का। बिल्कुल, ओहो, बहुत अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, और मैदान पर धोंडू तुड़सकर खेल रहे हैं, जो कि सबसे, अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो उनको दाद देनी पड़ेगी। उम्र का क्या सवाल है दोस्तों मैदान पर, लेकिन खेल बिल्कुल अच्छा, आज भी खेल रहे, गेंदबाजी कर रहे, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे धुंडू तुड़सकर मैदान पर। और इस बीच खेल रुका हुआ मैदान पर, खेल और एक ओवर का, 3 ओवर समाप्त हुए, और 3 ओवर के बाद टोटल 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दो छक्के लगाकर 14 पर आउट होकर वापस अमृत वर्लेकर, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर संतोष संतोष पालनी। स्कोर वही पर रुका हुआ 30 पर, अभी भी चाहिए 38 रन मैच को जीतने के लिए। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है। सागर थोड़ा सा महंगे लग रहे थे, लेकिन आखिरकार एक विकेट चटकाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, छोटा रन अप है लेकिन बड़ी तेज गेंदबाजी करते हैं। इस बार गेंद हवा में, लॉन्गा बाउंड्री पर, फील्डर से दूर है, और जब तक देखना होगा फील्डर गेंद पर आते, गेंद को फील्ड करते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन मिले स्कोर के खाते में। टोटल आगे बढ़ा 32 पर, 2 विकेट पर, 32 लॉस ऑफ 2 विकेट। फुल टॉस उड़ाया मिड विकेट पर, और कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए, डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6। 20 गेंदों का खेल बाकी।
पीएल ओवर, ध्रुव ओवर का इशारा होता हुआ अंपायर का 38 सर्कल के भीतर सभी फील्डर, और वो ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए शायद प्रीतम बारी दिखाई देते हुए। 4 ओवर समाप्त हुए, 38 रन, 4 ओवर का खेल बाकी, 30 रन मैच को जीतने के लिए। लेकिन ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, एक अच्छा ओवर मैच में फिर से वापसी होगी। अगर 12-15 रन बने इस ओवर में, मैच थोड़ा सा आसान हो सकता है मैदान पर फ्रेंड सर्कल नैबाक सत्यादेवी क्रिकेट टीम को। इस बार बल्ले से निचले से चलेगी, रन के लिए निकले, रन आउट का खतरा, ओहो हो नहीं, बिल्कुल जो कि गेंद नहीं लगी स्टंपों पे, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। एक रन पूरा होता हुआ स्कोर के खाते में, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पर पहुंचा, टोटल 39, 2 विकेट के नुकसान पर। एक ओर से बल्लेबाजी कर रहे साई दत्त, उनका साथ देने के लिए आ चुके संतोष पारणी, आते आते एक बिल्कुल बड़ा शॉट लगा चुके हैं। खुद के व्यक्तिगत 8 पर साई दत्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 पर, दोनों बल्लेबाज 8-8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं व्यक्तिगत। और बॉलिंग बार पर प्रीतम बारी, पीपीएल ओवर। ओ बोल्ड हुए उस गेंद पर, क्या यॉर्कर, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की गेंद, और सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया। गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम को मिली ये तीसरी सफलता। डीजे नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर, अमित मुलगांवकर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, जिस गेंद पर सफलता मिली प्रीतम बारी को। और बल्लेबाज आ चुके अमित मुलगांवकर। चलता हुआ ये पीपीएल ओवर यानी ध्रुव ओवर। और इस ओवर में पिछले कई सालों पर गेंदबाजों ने भी बिल्कुल अपना गेंदबाजी का दबदबा बनाया रखा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है कि बहुत सारे गेंदबाजों ने। ऑप्टम से बाहर छोड़ा, जाने दिया, कट होकर और बाहर की तरफ निकले, एक एंगल बनाकर निकली गेंद। विकेट कीपर के हाथों में वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस एक रन के साथ टोटल पहुंचा 40 पर। 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन, 28 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी। बार बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई थोड़ी सी मिस फील्डिंग, क्या दूसरा रन बनेगा? दोंडू तुलसकर ने शायद कोशिश जरूर अच्छी की थी, लेकिन गेंद उनको बेट करते हुए चली गई, थोड़ा आगे गेंद गिरी। और जब तक गेंद को शॉर्ट पाइन लेके फील्डर जाकर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन बना, और जो कि स्कोर के खाते में 41 पर पहुंचा। 27 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। अच्छा शॉट, इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, 2 फील्डर है गेंद के पीछे। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। ओ हो, बिल्कुल तालमेल की गड़बड़ हो गई, एक और विकेट चला गया। सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम का 1 रन जरूर बना स्कोर के खाते में, लेकिन एक विकेट भी चला गया, और एक सफलता मिलती हुई 42, लॉस ऑफ 4 विकेट। डीजे
नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, दिग्गज गावड़े। ओ बहुत अच्छी गेंद इस बार, वाइड बॉल का इशारा लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, और एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 43 पर। 25 रन अभी भी चाहिए और आने वाले 20 गेंदों का खेल बाकी। 20 डिलीवरी 25 रन, 20 चेंडूत 25 धावा। इस बार अपसाइड पर कवर पर एक मौका निकला, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, और कैच को पकड़ते हुए दिग्गज आउट होकर वापस, सफलता मिली। अमित माफ कीजिए आउट होकर वापस, 5वां विकेट अमित मुड़गांवकर वापस मैदान पर। दिग्गज गावड़े और उनका साथ देने के लिए देखना होगा फिलहाल नए बल्लेबाज कौन निकलते हुए, लेकिन फिर से थोड़ा सा संकट में दिखाई देती हुई सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नाइबा क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर हो चुका है 43। 25 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, जो कि इस ओवर के बाद आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी, और नए बल्लेबाज मैदान पर मंदार जाटी है डीजे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार, बिट हुए उस गेंद पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और स्कोर रुका हुआ टोटल 43। 5 ओवर का खेल, 3 ओवर का 18 गेंदों का खेल बाकी, और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 25 रन। 18 चेंडू 25 धावा सामना जिंकण्यासाठी। कमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय, आवाज ऐकूया जय भोसले। मी आज मात्र थांबतो या स्पर्धेदरम्यान, पुन्हा उद्या भेटूया ठीक 12:30 वाजता। धन्यवाद। अठारह गेंदों का खेल बाकी और 25 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला देखा जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए उस मैच में कुछ ज़्यादा रखा नहीं, लेकिन जाते जाते एक मैच जीता जाए, शायद इसी सोच के साथ इस अभियान की समाप्ति जीत के साथ की जाए, ये सोच होगी। तो दूसरी तरफ से लगातार तीसरी जीत अपने नाम करने के लिए तैयार होती हुई जो कि साबदे वाली टीम। चंद्रकांत कांबले जी गेंदबाज, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके थे जरूर, हाथ से छोटे, लेकिन कवर बैकअप देखिए प्रीतम बारी का क्या वहां पर देखने को मिला, जो कि मेरे ख्याल से 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 44, 44 रन स्कोर बोर्ड पर। 17 गेंदों का खेल बाकी, 24 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ बल्ले के बाहरी किनारे को लगी, लेकिन स्लिप पे खिलाड़ी तैनात कर दिया गया है, कोई रन नहीं। इससे पहले जो मुकाबला होता लगभग सिर्फ 45 रनों का आसान मुकाबला था। गलती कहाँ हुई इसके ऊपर विचार विमर्श जरूर करेंगे, लेकिन बल्लेबाजों के हाराकिरी मैं तो कहूंगा। वो हाथ में मौके जरूर थे, वो मौके हाथ से छूट गए, और जब मोती बिखर जाते हैं तो निखरने में काफी दिक्कत आ जाती है। और इस बार उठाकर खेला है, सेफ नो मैंस लैंड में गेंद निकली है, लगभग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जब तक फील्ड की जाती। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 46, 46 रन स्कोर बोर्ड पर। 68 रनों का पीछा कर रही है टीम इस मैदान पर, और रात के वक्त इस मैदान पर अगर बात अनुमानित स्कोर बताया जाए तो 60 के ऊपर का टोटल चेस करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये कई बार लगातार हमने देखा है, और आज वही साबित हो रहा है जरूर, लेकिन ये मैच बीच में फंसा है। फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में सागर मोरजकर गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1 ही रन मिलेगा, मंदार के बल्ले से निकला हुआ शॉट था। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 47, 47 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 14 गेंदों में 21 रनों की है आवश्यकता। ये समीकरण इस जीत का आज के इसके बाद और एक मुकाबला बाकी इस रजनी का, और
चंद्रकांत फिर एक बार गेंदबाज की मोर्चे पर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा कवर की दिशा में खेला हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर गेंद निकलते हुए 4 रन के लिए और इस चौके के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए यहाँ पर और टोटल पहुंचता हुआ 51 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखने लायक स्ट्रोक यहाँ पर जो कि बल्लेबाज दिग्गज के बल्ले से निकलता हुआ। तेरह गेंदों का खेल बाकी 17 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। ओ इस बार बाहर की तरफ निकली और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और अंपायर ने इसे फेयर डिलीवरी कहा था लेकिन थोड़ा सा रिव्यू मांगा है तो रेफर किया गया है थर्ड अंपायर के लिए। देखते हैं क्या होगा, ये फेयर डिलीवरी है या वाइड, ये कुछ पल में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर फेयर डिलीवरी है तो मेरे ख्याल से बचे हुए 12 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहेंगे 17 और अगर ये फेयर डिलीवरी नहीं होती है तो एक गेंद और डालनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार अंपायरिंग दोपहर के सत्र में आपको देखने को मिली। सुशांत साळगावकर, अभिजीत तळेकर और अब राजेश सिंगनापुरकर और साथ साथ सिद्धेश हरमलकर ये जोड़ी ऑफिशियल्स के रूप में मैदान के अंदर आपको नजर आती हुई। इट इज अ फेयर डिलीवरी, यानी कि अब 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। और गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार आपको दिखाई देंगे हमारे दूर वाले एंड से रजत कुडालकर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर 12 गेंदे 17 रन ये मुकाबले का लेखा जोखा। और सामना करेंगे मंदार जाटे। इन्होंने शानदार गेंदबाजी मंदार जाटे ने करी थी लेकिन उनकी टीम ने थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस दिया पिछले मैच में। ओ बहुत बढ़िया गेंद खेले या छोड़े, ये द्विधा मनस्थिति में आखिरकार जकड़ गए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी दुख साथ पर। एक टीम वर्क जो है वो सामने वाली टीम कर रही है। मंदार जाटे जो कि प्रयास कर रहे थे सिंगल लेने का, गेंद तब तक निकल चुके विकेट कीपर के हाथों में। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, दूर से खेला हुआ स्ट्रोक था, ऊपर चढ़ी थी गेंद और प्रीतम बारी गेंद के नीचे और एक विकेट। मंदार बैक टू द पेविलियन। सुंदर गाणं या ठिकाणी प्रीतीच्या झुल्यावर झुलवा, म्हणजे निश्चितपणे ज्यावेळी तुम्ही सामना जिंकता त्यावेळी तुम्हाला प्रीतीच्या झुलावर तुमचे समर्थक, तुमचे ओनर, तुमचे पार्टी रख के झुलवत असतात। तो यही कहने की बात यहाँ पर इस धुन से बनाई है। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रसाद नागवेकर जाते हुए। रजत कुडालकर बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में 100% अपने लिए, अपने टीम के लिए समर्पण करते हुए, अपने टीम को जीत दिलाने की कोशिश करते हुए। और प्रसाद नागवेकर के ऊपर दारो मदार और पृथककरण इस मैच का अगर आपको बताया जाए, 10 गेंदों का खेल बाकी है और 17 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 10 गेंदे 17 रन। आगे निकले थे खेलने के लिए, बल्ले के ऊपर हिस्से से लगी वहां पर पॉइंट वाला खिलाड़ी जब तक ढूंढू गली की क्षेत्र में जाकर गेंद को फील्ड करते, मात्र मिला वहां पर सिंगल। अब बचे 9 गेंदे और 9 गेंदों में चाहिए 16 रन ये मुकाबला जीतने के लिए। एक आध बड़ा शॉट मैच में फिर एक बार वापसी करा सकता है सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग टीम को, लेकिन देखना है। गेंदबाज रजत कुडालकर एक चतुर गेंदबाज, होशियार गेंदबाज। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, कभी कभार रन दे जाता है लेकिन कभी कभार गेंदे जाया कर देने वाला शॉट होता है। बिंदी गेंद समाप्त हो गई। 8 गेंदों का खेल बाकी है और 16 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए।
फिर एक बार उठा कर खेला, खड़ी हो गई है गेंद, फिर एक बार मौका बना है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हैं और एक विकेट का पतन, वापस जाना पड़ रहा है बल्लेबाज को। दिग्गज मात्र वापस निकलते हुए और एक विकेट का पतन। अब 7 गेंदों का खेल बाकी है और 16 रनों की है और आवश्यकता। क्या परफॉर्मेंस रहा है गणपति वॉरियर्स वज्रिम टीम का, बहुत ही बढ़िया। शुरू से लेकर अब तक अपनी टीम को लगभग जीत की कगार के ऊपर खड़ी हो चुके हैं। 7 गेंदों का खेल बाकी है और 16 रनों की है और आवश्यकता। अक्षय टावरे ने भरपूर प्रयास किया था बड़े शॉट लगाने का, लेकिन नाकामयाब रहे। और फिर एक बार और अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेला, सिंगल तो जरूर निकलेगा कवर की दिशा में। एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आकर गेंद को जब तक फील्ड करता। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और 15 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस रन मात्र 14 गेंदों में प्रीतम बारी की वो पारी कामयाबी साबित हो गई इस मैदान पर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली। आखिरी ओवर 6 गेंदों में चाहिए। ओहो, ये टांगों के बीच में से गेटवे ऑफ इंडिया और एक विकेट सुचित नानचे के खाते में और एक विकेट यहां पर। पद्धतीच्या धून या ठिकाणी लावल्या जात आहेत। आता कसं वाटतंय, कारण आउट होणाऱ्या खेळाडूला थोडंसं दुःख वाटत असेल आणि ज्या संघाच्या गोलंदाजाने बळी मिळवलाय त्याला मात्र या गाण्यावरती डान्स करावासा वाटत असेल। तो यही इस धुन की खासियत थी। तो अब बचे 5 गेंदे और 5 गेंदों में चाहिए और 15 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 विकेट का पतन यहां पर हो चुका है और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नंद कुमार। फुलटॉस गेंद, खड़ी हो गई है गेंद, फिर एक बार मौका, बैक टू बैक विकेट सुचित नानचे के खाते में और एक सफलता। विकेट नंबर 9। पहले इनिंग में अक्षय टावरे ने इस प्रतियोगिता की पहली विकेट हैट्रिक मुकम्मल करी है और अब हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं सुचित नानची। आखिरी विकेट बाकी है और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अमित गांवकर आ चुके हैं। क्या इसी मैच में और एक विकेट हैट्रिक देखने को मिलेगी? आज के दिन में दूसरी हैट्रिक हो पाएगी विकेट की? यह देखने लायक बात तो जरूर है, लेकिन बचे गेंदे अब 4 और 4 गेंदों में चाहिए 15 रन।
सुचित नांचे बल्ले से इस मैच में कुछ खासा कर नहीं पाए। आज के दिन का एकमात्र अर्धशतक जिनके बल्ले से आए वो सुचित नांचे है और गेंदबाजी में अच्छा कारनामा कर रहे हैं। यानी बल्ला नहीं तो नहीं, गेंद तो मेरे चलते रहेंगे, शायद इसी सोच के साथ। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बल्ले के नीचे से निकले विकेट कीपर के हाथों में। अब 3 गेंदों का खेल बाकी और 3 गेंदों में चाहिए और 15 रन। मैच लगभग हाथ से फिसल चुका है। गणपति वॉरियर्स वज्रिम अपने लगातार तीसरे जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है, यानी कि टेबल टॉप के ऊपर जरूर आएगी ये टीम, क्योंकि तीसरा मुकाबला जीतने की कगार पर है। इस बार खेल दिया हल्के हाथों से, जो कि डीप में मिड ऑन के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन। सिंगल से कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि अब दिल्ली बहुत दूर हो चुके हैं, तो अब जीत जो है ना वो काफी दूर निकल चुके हैं। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है और 2 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। आज का दिन प्रीतम बारी के लिए यादगार दिन रहेगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका। और इस बार उठा कर खेला है, बाहर से गेंद खींचकर निकाला हुआ स्टोक, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर। और 8 रनों की और आवश्यकता। आखिरी गेंद 8 रन। एक शॉट जरूर लगाया है लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। इस बार उठा कर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, क्या पहुंच पाएंगे गेंदबाज? जी नहीं, फील्डर नहीं पहुंच पाए, सिर्फ मिला 1 रन। और इस मुकाबले में भी जीत हो गई आखिरकार गणपति वॉरियर्स वज्रिम टीम की। सत्यदेव फ्रेंड सर्कल नईबाग को जीत का मुंह देखना नसीब नहीं था। लगातार तीसरा मुकाबला वो भी हार चुके हैं और इस प्रतियोगिता को उनको अलविदा करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से 3 मुकाबले में जीत कर टेबल टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि गणपति वॉरियर्स वज्रिम की टीम। और आज के रजनी का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम वर्सेस HYS वॉरियर्स हसापुर के बीच में। तो उससे पहले इस मैच के मैन ऑफ द